زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید۔ حکومت یہ چاہ رہی کہ یہ وبا پھیلی بھی ہے، ہم اگر یہ سواری علم مبارک برآمد ہوگی تو تمام لوگ آئیں گے تو جمع ہوں گے تو یہ وبا اور زیادہ پھیلے گی۔ دیکھیے آپ نے دو چیزوں کو مکس کر دیا، بالکل صحیح۔ آپ ان دو چیزوں کو الگ الگ رکھیں۔ جی، سواری الگ ہے، جی، جلوس الگ ہے، کیا کہیں، سبحان اللہ۔ آپ دو چیزوں کو الگ الگ رکھیں۔ جی بالکل۔ سواری 1616 عیسوی میں علم کا تبرک آیا، جی، یہ 2020 عیسوی ہے، جی، 404 سال یوں ہو جاتے ہیں، جی، ہر صدی میں 3 سال کا اضافہ ہوتا ہے ہجری میں، جی بالکل۔ اس طرح سے 400 سال میں 12 سال اور جوڑ لیجیے، 404 میں 12 سال کا مطلب یہ ہے کہ 416 سال ہے۔ جب یہ سواری 416 سال سے نکل رہی ہے تو کیوں نکلے گا تو سوال ہی نہیں پتا، وہ نکل رہی ہے، وہ برآمد ہو رہی ہے، جی، اس شہر کی سلامتی کے لیے برآمد ہو۔ ایک اور بات جو ابھی آپ نے کہا کہ پینڈیمک کووڈ-19 کی وجہ سے، جی، میں یہ کہوں اس 400 سال میں کتنی وبائیں حیدرآباد میں آئیں؟ 1902 میں طاعون آیا، جی بالکل۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہندوستان میں مرے، اللہ، سواری نکلی، پھر اس کے بعد حیدرآباد میں وبا نہیں آئی۔ ابھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا، بہت سے میرے ویورز کو یہ بات یاد ہوگی کہ ایک فساد ہوا تھا حیدرآباد۔ اب کیوں ہوا، کیا ہوا، وہ تفصیلات چھوڑیے، اس میں کرفیو نافذ ہوا، ایسا کرفیو سخت کہ شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈرز تھے۔ بالکل صحیح۔ محرم آ گیا اور حکومت نے کہا کہ سیاہ لباس کو کرفیو کا پاس تصور کیا جائے۔ کیا کہیں، مسٹر پوترن اس وقت کمشنر تھے، جی بالکل، علم برآمد ہوا، جی، اسی طرح برآمد ہوا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ حیدر کرار کے بیٹے کا ماتم حیدرآباد میں ہو رہا ہے اور اس شان سے ہو رہا ہے۔ یہ ہوا، یہ میں ہسٹری بیان کر رہا ہوں، جی بالکل۔ کوئی تردید تو کرے، کوئی تردید تو کرے۔ آپ کہہ رہے ہیں حکومت سے کہ ہم کو جلوس نکالنے دیجیے، تو آپ نے یہ کب کہا کہ علم کی حکومت کی ذمہ داری ہے علم کو برآمد ہونے دینا؟ کیا کہا؟ حکومت کی ذمہ داری ہے یہ۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وبا ختم ہو تو برآمد، بھائی کون نہیں چاہتا وبا ختم ہو؟ تو ان کو بتائیں۔ 135 کروڑ انسانوں میں سے کوئی بتائے کہ وبا ختم ہونا کون نہیں چاہ رہا ہے؟ جی بالکل۔ بات دراصل یہ ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ، میں اس قسم کے لہجوں کا عادی نہیں ہوں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ حکومت کے سامنے یہ بتلاتے کہ علم کی تاریخ کیا ہے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جناب فیاض صاحب اور ناظرین کرام کو بھی کہ اس میں 2 چیزیں، ایک ہے ہسٹری اور ایک ہے ٹریڈیشن۔ آپ 2 کو ایک جگہ جو ملا رہے ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں پہلے یہ تو بتائیے۔ آپ ٹریڈیشن کی برقراری چاہ رہے ہیں یا تاریخ کی برقراری چاہ رہے ہیں؟ اگر علم نہیں نکلا تو تاریخ منقطع ہو جائے گی، اگر علم نہیں نکلا تو تاریخ منقطع ہو جائے گی، اور اگر تاریخ منقطع ہو جائے گی تو اس حکومت کی پیشانی پہ داغ لگ جائے گا کہ 500 برس کی تاریخ میں اس حکومت نے یہ کام کیا۔ آپ نے یہ نمائندگی کی نہیں، جب آپ نے نہیں کی تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج محرم کی 30 تاریخ ختم ہوا چاہتی ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو خود کو نمائندہ کہتے ہیں اس قوم کا، انہوں نے کیا نمائندگی کی؟ میں اس وقت یہ کہنے سے کوئی جھجک نہیں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر کسی میٹنگ میں جناب محمود علی صاحب وزیر داخلہ موجود تھے تو ان کا وزیر داخلہ ہونا اور بات تھا، ان کا تاریخ سے واقف ہونا اور بات ہے۔ ان کو تاریخ سے واقف کروایا جانا چاہیے تھا۔ جب چندر شیکھر راؤ صاحب نے بونال کو اور محرم کو انہوں نے ریاستی تقاریب کا درجہ دیا تھا، تب یہ تھے، تو آپ نے بتلایا کہ اس علم کی کیا تھا۔ ڈاکٹر شنانڈی جب چیف منسٹر تھے
तो उन्होंने तो बीबी के अलम के हाथी को जू में रखवा दिया था हुकूमत के खर्च पर। मैं ये हुकूमत के तगाफुल को कबूल करने के लिए फिर वक्त तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि नुमाइंदगी क्या हुई, किसने नुमाइंदगी की, क्या नुमाइंदगी की, क्या जुलूस की नुमाइंदगी की या अलम की नुमाइंदगी की। अगर अलम के बरामदगी की नुमाइंदगी की है तो आपको नुमाइंदगी करने के लिए किसने कहा था? अलम निजाम ट्रस्ट की मिल्कियत है, निजाम ट्रस्ट की जिम्मेदारी है अलम को बरामद करना। हुकूमत बरामद करे, हुकूमत बरामद करे अलम। हुकूमत आज तक मैं कह रहा हूं कि 1948 में रियासत हैदराबाद हिंदुस्तान में जम हो गई, निजाम राज प्रमुख रहे। 1956 से आंध्र प्रदेश कायम हुआ, आज तक अलम कभी नहीं रुका। निजाम मुतवल्ली है इस अलम के और कोई मुतवल्ली नहीं है। निजाम ट्रस्ट जिम्मेदार है, निजाम ने उसका ट्रस्ट रखा, एक एक चीज का ट्रस्ट रखा। हाथी का ट्रस्ट है, खिदमतगारों का ट्रस्ट है, मुजाहिरीन की तनख्वाह का ट्रस्ट है, शहनाई रखने बजाने वाले का ट्रस्ट है, अलम पर हाथी पर सवार होने वालों की जो नजराना है उसका ट्रस्ट है, हाथी के झोल का ट्रस्ट है, उसकी पेशानी पे लगने वाली ढाल का ट्रस्ट है। आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे ये तो मुझे पता नहीं। उस निजाम ट्रस्ट की जिम्मेदारी है, वो निकालेगी। अब ये बात कि अलम के पीछे सोगवारों का जो जुलूस, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं ये बात, 60s के आखिरी सालों, 1960 के आखिरी सालों में शायद 67 रहा हो या 66 रहा हो, अब मैं याद तो नहीं रख पा रहा हूँ, मेरा हाथ साथ नहीं दे रहा। सबसे पहले गुरोह काज़मी पहुंची वहां अलम की 1966 से पहले या 65-66 बस इन सालों से पहले तो कभी कोई जुलूस नहीं निकला। पहले ये अलम पैदल जाया करता था। ये जहाँ आपका गंगा नगर वाक़ है उसके मुकाबिल में एक बड़ा बड़ का पेड़ है, बरगद का पेड़, वहाँ एक दरवाज़ा होता था जिसे याकूतपुरे का दरवाज़ा कहते थे। जैसे दबिलपुरे का दरवाज़ा है वैसे याकूतपुरे का भी दरवाज़ा था। वो हाथी इतना बुलंद बाला था कि उस दरवाजे के नीचे से गुजर नहीं सकता था, तो हाथी वहाँ खड़ा होता था। अलम वहाँ तक जाते थे, हाथी पे सवार होते थे, सवारी बरामद होती थी। और एक हाथी नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहूँ वो उस हाथी का नाम था मौला बख्श, उसके बाद एक हाथी आया बाल पैकर, उसके बाद एक हाथी आया फतेह निशान, उसके बाद एक हाथी आया हैदरी, उसके बाद ये रजनी। ये सिलसिला है। जब वो हाथी सिर्फ और सिर्फ बीबी का आलम ले जाया था। एक मरतबा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के गिलाफ को ले जाना चाहा लोगों ने, और उन्होंने कहा कि बीबी के आलम का हाथी दिया जाए ताकि मुगलपुरे से काशीगुड़ा स्टेशन तक के हाथी पे ले जाया जाए। तो निजाम ने कहा नहीं, वो सिर्फ बीबी की सवारी के लिए। क्या सुभान, उसके लिए मेरे फील खाने से दूसरा हाथी ले जाओ। क्या ये तकद्दुस था। मैं सिर्फ अगर इसी अलम की दास्तान बयान करने बैठूं तो आपके नाज़रीन का बहुत वक्त लग जाएगा, बहुत वक्त लग जाएगा। हाथी की दास्तान कहूँ मैं, क्या क्या इस्तेमाल किया गया। तो आज आप मुझे ये बताइए, आप तो जनाब ये कह रहे हैं कि ये बड़ा मसला, मुझे ये तो बताइए आपने नुमाइंदगी किसने की है, क्या नुमाइंदगी की, ये तो मुझे पता चले। आप सब मुझसे पूछ रहे हैं, कुछ मुझे भी तो बतलाए कि किसने नुमाइंदगी की है, कौन वक्त गया था, किसने क़ियादत की है, क्या कहा है, किसके वसीले से कहा है। क्या वज़ीर आला ने कहा कि नहीं निकलेगा अलम? क्या वज़ीर दाखिला ने कहा कि अलम नहीं निकलेगा? क्या कोतवाल शहर ने कहा कि अलम? मैंने सुना है कोतवाल शहर की तकरीर मीडिया पर आई थी, उन्होंने कहा कि आप सड़कों पर न जाए, अपने घरों में मातम करें, हमको इजाज़त दें कि हम आपके साथ इस मातम में शरीक हों। ये मैंने सुनी है अंजनी कुमार की तकरीर, आपने भी सुनी होगी, नाज़रीन ने भी सुनी। आपने पहली बात तो ये अलम की बरामदगी और अलम की सवारी एक अलग मौजू है, बिल्कुल सही, जुलूस एक अलग मौजू है।
आपको ये नुमाइंदगी 2 हिस्सों में करनी चाहिए थी, अगर आप नुमाइंदा हैं तो और अगर आप नुमाइंदा नहीं हैं तो आपने एक इतनी बड़ी बावकार कम्युनिटी को जलील किया। आप कुछ बतला नहीं सके अपनी कम्युनिटी की तारीख क्या है, करबला क्या है, अलम की क्या तारीख है, क्या क्यों किया आपने? आपको कहना चाहिए था ये अलम की तारीख है, इतने 100 साल से अलम निकल रहा है, इस अलम की वजह से ये फयूजात हैं, ये बरकतें हैं। हुकूमत सेक्युलर हुकूमत है, हर मजहब का ख्याल रखना है उसको, उसने कभी ना नहीं किया, कर्फ्यू में उसने अलम निकाला, तो आप कहते कि आज ये वबा है, ये वबा भी दूर हो जाएगी सवारी। और हुकूमत ने कब नहीं कहा कि अलम नहीं निकलेगा, ये स्टेटमेंट है क्या किसी के पास? फिर क्यों तशवीश फैलाई जा रही है? आपको चाहिए कि आप कमिश्नर से गुजारिश करें कि इंतजामात हो। इंतजामात मैं तो समझता हूँ, मुझे बीबी पे बड़ा यकीन है। मैं हुसैन इब्न अली के दरवाजे पे खड़ा हूँ, मुझे उन पर यकीन है। मैं किसी सियासतदान के भरोसे पे कोई बात नहीं कहना चाहता, न उसकी खुशनुदी के लिए कोई बात करना चाहता। मैं हुसैन के दर पे खड़ा हूँ और मेरे साथ इस वक्त हैदराबाद का हर अदादार हुसैन के दरवाजे पे खड़ा है। वो चाहता है कि अलम निकले। क्या चाहते हैं आप इस सिलसिले में मुझसे, और क्या जानना चाहते हैं तारीख में बताइए मुझे, मैं कहने के लिए जो मुझे इल्म है वो मैं कहूँ, पूछिए। अर्ज मारूजा यही था कि अब जो लोग ये चाह रहे थे कि दोनों चीज़ों, आपने कहा कि 2 सवाल आपने मिला दिए। बिल्कुल है, एक देखिए दुरुस्त है, जी दुरुस्त है। अगर ट्रेडिशन रुकता है क्या नहीं मैं वो नहीं, मैं अगर ट्रेडिशन यानी एक हमारा तरीका है कि उस अलम के पीछे पीछे हम रहे, हम अपनी इज्जत महसूस करते हैं। बेशक हम ये चाहते हैं कि वहाँ हमारा किराया पेश करें, लेकिन अगर हुकूमत ये चाहती है कि उसको खौफ है, हम जहाँ खड़े हैं वहीं से मातम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं ये नहीं कह रहा, अगर जुलूस की इजाज़त मिल जाती है, खुदा करे कि इजाज़त मिल जाए, इसके लिए आप लोग जो कोशिशें पुराने तरीके से कर सकते हैं जरूर कीजिए, मैं उसके खिलाफ नहीं। लेकिन अगर ये रिवायत रुक रही, जिधर जिधर से अलम गुजरेगा, हम रास्ते में अपनी आंखों से आंसुओं का नजराना पेश करते हुए अपने सीने पे हाथ मार के कहेंगे जो हुसैन आप जानते हैं हमारे दिल में क्या, हर हकीकत से इमाम अदली वाकिफ हैं, मेरी नीयत से हुसैन इब्न अली वाकिफ। लेकिन अलम निकले, अलम निकले, अलम अपनी पूरी रूट कंप्लीट करे, हम अदादारों के दरमियान ही से नहीं पूरे शहर के दरमियान से जाए और सबको अमन सलामती देता हुआ, तकसीम करता हुआ जाए। मैं ये कह रहा हूँ, आप फरमाइए। और क्या कंटिन्यूटी ऑफ हिस्ट्री लाजमी है, बिल्कुल सही, कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशंस भी लाजमी है, लेकिन ट्रेडिशंस में थोड़ा बहुत हम समझौता कर सकते, इसमें हिस्ट्री में नहीं कर। अगर ये हिस्ट्री मुनक़ता हो जाएगी तो साहबान इक़्तिदार को ये समझ लेना चाहिए कि उनके पूरे कैरियर पर पेशानियों पर दाग लग जाएगा। क्या कि उन्होंने हुसैन इब्न अली के अलम को नहीं निकलने दिया। आगे काम जो उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैं तो ये कर सकता हूँ, कोई और बात नहीं लाया। शुक्रिया क़िबला, मैं तमाम नाज़रीन की और मेरी जानिब से, मेरी यूनिट और याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से क़िबला काबा का बेहद ममनून और मशकूर। मैं खुद भी इस चैनल के लिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया, और साथ ही साथ मैं अपने नाज़रीन का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं तवक्को करता हूँ कि इस शिया इस्लामिक टीवी चैनल और तरक्की करे, तारीख को पेश करें नाज़रीन के सामने। मुझे उम्मीद है कि चैनल बहुत जल्द बहुत तरक्की करेगा और समंदरों पार तक के इसकी शोहरत पहुँच जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है, ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. रिजवी डेयरी फार्म, जिसका साफ सुथरा काम जो बनाए हर किसी को स्ट्रॉन्ग। रिजवी डेयरी फार्म जो 30 सालों से अवाम की खिदमत अंजाम देता रहा है। हमारे यहाँ साफ सुथरे तरीके से सारे डेयरी प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं, जैसे खालिस भैंस का दूध, मलाई और खोवा, जो सारे हिफाजती इक़दामात के तहत हमारे प्रोडक्ट्स सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए ऑर्डर्स लेते हैं, जैसे होटल्स, फंक्शंस, शादी, जश्न वगैरह। मजालिस के लिए हमारे यहाँ स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। हमारा एक आउटलेट रूहबरू अलावे सरतौक दारुशफा के पास है और हमारे डेयरी फार्म्स तालाब कट्टा और जलपल्ली में मौजूद है। हमारे यहाँ फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज भी मौजूद है।